Hello students. Uh, Again I am here to discuss the next chapter, that is heredity and evolution. In this year's syllabus, only the heredity and sex determination of human beings are there. The evolution part is going to be deleted. Or actually it is deleted, not going to be, it is deleted from the CBSE 10th class syllabus, this in the NCERT, from the NCERT. So the syllabus is up to heredity and sex determination. The evolution part is deleted. Now, first of all, let me start this video by this term only, heredity. Now, what does heredity means? हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर. पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना ही हेरिडिटी कहलाता है. It is very simple. The color of the eyes, the color of the skin, the type of hairs, so many characters are there inside us. Or in fact, when we talk about the others, they are also having, for example, if we talk about the plant, they are also having different patterns and all different characters they have. So all those characters which comes in the offsprings, it came from the father or the mother. So that is what called the heredity is, the transfer of characters from the parents to the offspring. So before we start this chapter, and again इसमें ज़्यादा बात किए बगैर मैं आपको I just want to tell you a little bit. About the some important terms actually, which you should know. Okay, which you should know. Now the first term is the chromosomes. What are chromosomes? Actually, you studied in the 9th class. Chromosomes are the thread-like structures. You can say they are the thread-like structure found in the nucleus of the cell, which contains all the genetic information. Genetic means the study of genes, or it is the genetic word is related to the genes. I tell you what is gene is. So chromosomes are the thread-like structures found in the nucleus of the cell. Cell के nucleus में ये thread-like structures होते हैं, which are made up of DNA, and some histone proteins. Histone proteins or DNA, or sometimes non-histone proteins also. Proteins, non-histone proteins and DNA. इनसे ये मिलकर जो है ये क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन है. Now chromosome contains some discrete unit which is known to be as genes. And these genes are responsible for characters. ये जीन्स जो हैं ये कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. Each gene is responsible for a character. तो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे, और वो प्रोटीन्स जो है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो हमें शो करेगा, या वो उस प्रोटीन की वजह से हमें इफेक्ट शो होंगे. नाउ वी आर नॉट गोइंग इन द डीप, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू the difference between the difference actually what the chromosome is, what the gene is. Now chromosome contains so many genes, and you know that when we in 9th class we already studied that when we able to see the chromosome in a cell, तो किसी एक सेल में हम क्रोमोसोम कब देख पाते हैं? तो सेल जब डिवाइड हो रहा होता है, जब वो माइटोसिस या मेयोसिस की प्रोसेस कर रहा होता है, जब वो डिवीजन कर रहा होता है, एट दैट टाइम वी कैन इजीली सी द क्रोमोसोम. इन द रेस्ट ऑफ द फेज ऑफ द सेल, द क्रोमोसोम इज देयर इन दिस थ्रेड फॉर्म स्ट्रक्चर ओनली, एंड दैट थ्रेड फॉर्म स्ट्रक्चर को हम जो है वो क्रोमेटिन बोलते हैं. बट
फॉर यू इट इज द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं और जीन्स जो है वही कैरेक्टर को एक्सप्रेस भी करते हैं। हर एक जीन जो है वो कैरेक्टर्स को जो है वो क्या करेगा, तो ऐसा भी बोल सकते हैं जीन इज द पार्ट ऑफ chromosome and chromosome is made up of DNA, so we can say that gene is also the part of or you can say gene is also made up of the DNA and the histone proteins and all, so it is also the part of DNA, you can say like that। चलिए अभी हम जो है अभी जो हम जो है वो थोड़े से और कुछ और दूसरे चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम अभी बात करते हैं, ठीक है। तो जीन्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी हमें समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं एलील्स का। एलील समझने वाली बात। तो these are the same form of these are the forms of same gene। For example, I am telling you, ध्यान से सुनिएगा। For example, let us say अगर हम एक प्लांट के बारे में बात करें और हाइट ऑफ प्लांट के बारे में बात करते हैं, हाइट ऑफ प्लांट। तो हाइट ऑफ प्लांट को बताने के लिए प्लांट की हाइट के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल। तो हो सकता है कि प्लांट जो है वो लंबा हो सकता है कि प्लांट, लेट अस सपोज इट इज एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू, तो हो सकता है कि प्लांट जो है वो लंबा हो या फिर प्लांट जो है वो छोटा हो, है ना। फॉर एग्जांपल अभी हम आगे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ही इज द ग्रेट साइंटिस्ट व्हिच वी हैव इन पास्ट। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और उनके जो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पर यहाँ पर मैं आपको एलील्स के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एलील्स के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप जो है वो इसको आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एलील्स जो है, एलील्स को समझाने के लिए मैंने आपको ये समझाया कि हमने एक कैरेक्टर लिया है, हाइट ऑफ द प्लांट। वी टेकन ए कैरेक्टर हाइट ऑफ द प्लांट may be tall and plant may be dwarf। So it is 100% sure that a gene is responsible, a single gene is responsible for the height of the plant। प्लांट में कोई ना कोई एक जीन होगा जो कि हाइट ऑफ द प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पर प्लांट टॉल भी हो सकता है और डॉर्फ भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि एक जीन के दो अलग अलग फॉर्म्स होंगे, जो कि एक टॉलनेस को बताएगा और एक डॉर्फनेस को बताएगा। एक जीन के अलग अलग फॉर्म होंगे और वो फॉर्म एक टॉलनेस के लिए बताएगा और एक डॉर्फनेस के लिए बताएगा, और उनको हम बोलते हैं एलील्स। उन फॉर्म्स को हम बोलते हैं एलील्स। तो एलील्स आर द फॉर्म ऑफ सेम जीन, एलील्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन। मतलब एलील्स जो है वो एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म्स हैं जो कि अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को हमें बताने वाले हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स। ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, कॉन्ट्रास्ट मतलब यू कैन से टॉल, डॉर्फ, ब्लैक, व्हाइट, दीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को बताने के लिए जो है वो एलील्स रिस्पॉन्सिबल है। तो टॉल के लिए एक एलील होगा, तो उसको बताने के लिए हम स्टार और डॉर्फ को बता नहीं सकते। टॉल को बताने के लिए हम कैपिटल टी कर देते हैं और इस डॉर्फनेस को बताने के लिए हम स्मॉल टी कर देते हैं। So we can say that capital T and small t are the alleles of the gene which is responsible for height of plant। Okay, so I think this you understood now। So alleles is this, ठीक है ना। अब next term is the genotype। Next term is genotype। So it is the genetic makeup of an organism। It is the genetic makeup of an organism, or you can say it is the genetic combination of an organism। organism का जो genetic combination है, उस genetic combination को हम genotype बोलते हैं। और एक और जो word आता है that is phenotype। तो phenotype is the physical appearance of an organism।
तो किसी एक ऑर्गेनिज्म का जब फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करें तो उसे हम फेनोटाइप बोलते हैं, और किसी के अगर जेनेटिक मेकअप के बारे में बात करें, कॉम्बिनेशंस ऑफ एलील्स के बारे में बात करें, तो हम उसे जीनोटाइप बोलते हैं। अभी इसके बारे में हम और आगे डिटेल में बात करेंगे, बट जस्ट आई वांट यू नो अबाउट दिस टर्म जीनोटाइप एंड द phenotype. Okay, now what we have to study the patterns of inheritance. Inheritance is also the same thing, the transfer of character from the parents to the generation. Now we have to see what the Mendel done. अभी हमें देखना है कि मेंडल ने जो है वो क्या है। तो एक साइंटिस्ट जोहान मेंडल, ये मेरे ख्याल से 1900 से भी पहले की बात है, 1900 से भी पुरानी बातें हैं ये जोहान मेंडल की। तो इन्होंने क्या किया, ये जोहान मेंडल आपकी बुक में बहुत अच्छे से देके रखा हुआ है, मैं उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। he want to be a teacher, he want to be a lecturer in his life, but what happens, he got failed in those exams and where they are living there, they live in Montessori. तो जहाँ पर भी वो रहते थे वो वापस वहाँ पर आए और they started doing the practicals. They are very much interested in biology as well as they are very much interested in mathematics. So they started growing peas, मटर उन्होंने उगा दिए। तो they started growing peas. Peas का जो साइंटिफिक नेम है वो है Pisum sativum. Pisum sativum is the name. Pisum sativum is the name of the pea plant. इन्होंने ये मटर को उगाना जो है वो चालू किया अपने खेतों में, और उन्होंने अलग अलग क्रॉस कराए, बोला अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग क्रॉस कराए। और जब अलग अलग प्लांट में अलग अलग क्रॉस उन्होंने कराया, जब अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग क्रॉस उन्होंने कराया और इन पी से उन्होंने देखा कि वो कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए उन्होंने, वो अभी हम डिस्कस करने वाले। तो जब इन्होंने क्रॉस कराया और क्रॉस कराने के बाद इनको बहुत अजीब रिजल्ट्स मिले, तो वहां पर इन्होंने मैथमेटिक्स यूज करी, और मैथमेटिक्स यूज करने के बाद उन रिजल्ट्स को टैबुलर फॉर्म में लिया, उनसे उन्होंने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलेज थे उन्होंने अलग अलग जो है वो रिजल्ट्स निकाले। तो जब तक ये जिंदा थे तब तक इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, पर जब मरने के बाद जब दूसरे साइंटिस्ट आए और उन्होंने इनके वर्क को स्टडी किया, तो इन्होंने ये जाना कि ये जो इनहेरिटेंस हो रही है, ये जो हेरिडिटी हो रही है, इन्होंने इनको बेस्ट एक्सप्लेन किया इनके एक्सपेरिमेंट से। तो तब से इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो बोला गया। तो ही इज नोन टू बी एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। नाउ व्हाट ही डन एंड हाउ ही डन दैट वी आर गोइंग टू सी। तो हम एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं कर सकते, पर हाँ ये जरूर है कि हम बोर्ड में इनके सारे प्रोसेस को जो भी इन्होंने जैसे भी किया है उनको हम देख सकते हैं, है ना। तो अभी देखते हैं। तो सो ही इज नोन टू बी एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो दिमाग में क्वेश्चन सबसे पहले हमारे ये आता है, और एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई मटर ही क्यों आ गया। इस पूरे के पूरे दुनिया में बहुत सारे स्पीशीज हैं प्लांट्स की, तो इन्होंने मटर ही क्यों जो है वो चूज किया। व्हाई ही चूजन ओनली द पी प्लांट Pisum sativum, व्हाई ही चूज। तो फर्स्ट रीजन इज दैट जो पी प्लांट होता है ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग होता है, मतलब उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है वो आसानी से हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर आप चाहे लिख सकते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजिंग, इट इज केपेबल ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजिंग। वो आसानी से सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है उसमें आसानी से हो जाता है। दूसरा इजीली कल्टीवेटेड हो जाता है, इट कैन बी इजीली कल्टीवेटेड, इट कैन बी इजीली कल्टीवेटेड। ये आसानी से जो है वो कल्टीवेट हो जाता है, और एक ही सीजन में हमें बहुत सारे रिजल्ट्स जो है वो मिल जाते हैं। इनके पास शार्पली इनहेरिटेड ट्रेट्स हमें मिलते हैं, शार्पली इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब शार्पली का मतलब शार्पली इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब ये है कि जब इनको ग्रो कराया जाता है, जब इनको हम ग्रो कराते हैं, ग्रो कराने के बाद हम आगे देखते हैं, और जब हम नए कैरेक्टर्स मतलब जिनके कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, तो आसानी से वो कैरेक्टर्स दिख जाते हैं जो कि हम देखना चाहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल द हाइट ऑफ द प्लांट,
sir आप height of the plant रखे हो but but it is the simplest character which I can explain to you which I can explain to you मैं आसानी से समझा सकता हूँ। तो शार्पली इनहेरिटेड ट्रेड का मतलब बेटा ये कि मतलब ये ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि आसानी से प्लांट्स में हमें दिख जाते हैं। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि आसानी से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे प्लांट लंबा हो रहा है, प्लांट छोटा हो रहा है, हमने आसानी से रिकॉग्नाइज कर लिया। सीड का कलर येलो है या ग्रीन है, सीड जो है वो रिंकल्ड है या फिर राउंड है ना। फ्लावर्स जो है वो येलो वायलेट कलर के हैं कि व्हाइट कलर के हैं। जो प्लांट जो है, प्लांट में जो फ्लावर्स लग रहे हैं वो एक्सेल्स पे लग रहे हैं, एक्सेल पे लग रहे हैं या टर्मिनल पोजीशन पे लग रहे हैं। तो ऐसे करके उन्होंने देखा कि ये इसमें शार्पली इनहेरिटेड ट्रेड्स जो है वो हमें मिल सकती है। नेक्स्ट जो फोर्थ जो पॉइंट है जो कि पी प्लांट को बहुत अच्छा बनाता है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो है वो आसानी से हो जाता है। तो आई एम नॉट राइटिंग, जस्ट यू कैन राइट इन योर कॉपी कि भाई क्रॉस पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो है वो आसानी से हो जाता है। और पांचवा जो पॉइंट है इसमें हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मिलते हैं। मटर के पौधे में हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मिलते हैं। मटर के पौधे में हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मिलते हैं। और मैंने प्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स which carry the both male and the female sex organ, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन उनके पास दोनों। तो ये तो हमने देखा कि भाई मेंडल ने जो है वो पी प्लांट को क्यों लिया। अभी हम देखते हैं कि ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि what are the characters which are taken by, there are 7 characters. There are 7 characters which is chosen by Mendel. I'm just writing these 7 characters. The first is the height of plant. The second is the color of flower. Third is shape of seed. Color of seed. Fourth, fifth, sixth, and seventh. Pod color, pod shape, and flower position. So these are the seven characters. These are the 7 traits which are characters, traits, almost same thing. So these are the 7 characters, 7 traits which is taken by the Mendel in his experiment. Now the next column I am making is, you see, the next column which I am making is the contrasting forms. So these are the characters. These are the characters of the trait, and here I am writing the contrasting traits. And contrasting traits, one is dominant and the another one is recessive. I am coming to that. But just first we write that thing. The first is dominant and the second is recessive. You please take this spelling check because if you won't understand, you please see in the book. Now height of the plant. The dominant is the tall and recessive is dwarf. Now what is dominant and what is recessive means? Now when the Mendel done his experiment, so firstly for example, I'm just giving you one example. For example, he taken the tall plant and he taken the dwarf plant and he done the experiment. He crosses that plant. And what the progeny he get, what the generations he get what the offspring he get in the first generation, that becomes the dominant and that becomes the recessive. I'm giving you an example of, for example, tallness. Mendel crosses the tall plant with dwarf plant. Mendel
Mendel process with Mendel process the tall and dwarf plant. So in first generation, in F1 generation, F1 is typically like coming to that. F1 is typically so in first generation he gets all the tall plants. I'm going to tell you how it is there. So he getting all tall plants in first generation. He won't get any dwarf plant. इनको कोई भी डॉर्फ प्लांट छोटा प्लांट नहीं मिला, इन्हें सारे के सारे टॉल प्लांट मिले. तो ये टॉल जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है किसके ऊपर? डॉर्फ के ऊपर. तो दिस टॉल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर. This tallness is the dominant character over the dwarfness character. So here the one trait or one character is dominant and the second character is recessive on the basis of findings of the Mendel experiments. Mendel ने बहुत सारे क्रॉसेस किए और उन क्रॉसेस के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये पाया कि एक जो कैरेक्टर है वो अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करता है एंड दैट कैरेक्टर इज नोन टू बी एज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड दैट कैरेक्टर व्हिच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज नोन टू बी एज द रिसेसिव कैरेक्टर. तो यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो टॉलनेस है और रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो डॉर्फनेस. ऐसे कलर ऑफ द फ्लावर वॉयलेट एंड व्हाइट. So violet is dominant over white. The shape of the seed round and wrinkled. So round and wrinkled is the shape of the seed. The color of the seed green and yellow. Yellow is dominant over green. Then pod color green, yellow. Then pod shape constricted and flattened. Sorry. Here is full and constricted. Pod means छिलका जिसके अंदर में मटर मिलती है. कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड फुल एंड फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल. So this is the characters. Now what you have to remember for the exam? You have to remember for the exam only this characters. And seven characters is chosen. And what are those characters? These are the characters. If you learn this dominant and recessive, that would be good. Okay. Now the most important thing we are going to see right now is the monohybrid cross. Now I'll just tell you what it is. तो अभी हमें यहाँ पे मेंडल के जो लॉज है, मेंडल ने लॉज दिए, इनहेरिटेंस के लॉज दिए. मेंडल गिवन द लॉज फॉर इनहेरिटेंस एंड अभी हमें उन लॉज को भी हमें जो है वो पढ़ना है. वी हैव टू स्टडी दोस लॉज आल्सो. बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू restrict this video up to the monohybrid cross. I'm just explaining it. Now monohybrid cross of Mendel. मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो क्या है? तो मोनोहाइब्रिड, मोनो मींस वन. He chosen only one character and make the cross, and again he make the cross and find out their what do you say, उन्होंने उसके रिजल्ट जो है वो देखे और उनको कैसा क्या लगा वो हम बताते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो प्लीज आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ें. So monohybrid cross. Before we study the monohybrid cross, I am going to talk about the pure lines. Now, थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा. अभी क्या होता है कि we are diploid organism. That means we have pair of chromosomes. हमारे पास chromosomes जो है वो पेयर में है. We have 23 pairs of chromosomes. मैं अपना एग्जाम्पल लेके, ह्यूमंस के एग्जाम्पल लेके इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में. So we have 46 pair of chromosomes and both the allelic forms are present in
प्रेजेंट इन अस। ऐसे ही मटर में भी जो है वो जीन्स के एलिलिक फॉर्म्स जो है वो मौजूद होंगे। कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। अभी क्या होगा कि मान लीजिए कि हम एक प्लांट लेते हैं, टॉल प्लांट। अभी हम एक प्लांट लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने टॉल प्लांट लिया। तो टॉल प्लांट, टॉल इज दी टॉल, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है। मैंने अभी वीडियो में पहले आपको बताया था कि फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में। तो क्योंकि प्लांट हमें टॉल दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्लांट हमें टॉल दिखाई दे रहा है, तो ये जो टॉलनेस है, टॉलनेस इज फिनोटाइप। This tallness is phenotype because we can able to see. But sir, what about the genotype of this tallness? This tallness का genotype क्या होगा? So I told you in the previous video that genotype is the combination of alleles. Alleles भी मैंने बता दिया है, आप चाहें तो वीडियो को रिवर्स करके देख लें। तो alleles जो हैं, यहाँ पर जो alleles जो हैं, जो इसके लिए tallness के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो ये हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं। अब ये सर आपने क्या लिखा है? तो मैंने लिखा है कैपिटल डी और कैपिटल टी, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर्स में मौजूद होते हैं, और ये एक क्रोमोसोम हमें मदर से मिलता है, एक हमें फादर से मिलता है। ऐसे ही प्लांट्स में भी एक मेल पार्ट से आएगा, एक फीमेल पार्ट से आएगा, और ये दोनों जो क्रोमोसोम्स आएंगे, ये जो दोनों क्रोमोसोम्स आएंगे अपने साथ एक एक एलिलिक फॉर्म भी लेकर आएंगे। तो हो सकता है कि इसके जो पेरेंट थे उससे कैपिटल डी मिला, और इसकी मदर से इसको कैपिटल डी मिला, और ये जो इंडिविजुअल बना इसके पास कैपिटल डी आया। हो सकता है कि इसके पेरेंट के पास कैपिटल डी था, इसके पेरेंट से स्मॉल टी मिला मदर से, और ये जो कैरेक्टर है ये कैपिटल टी स्मॉल टी आया। पर क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये कैपिटल टी, और you can say tallness is dominant over the dwarfness. इसका मतलब ये है, ये जहां पर भी ये कैपिटल टी रहेगा, प्लांट जो है वो टॉल ही पैदा होगा, ये टॉल ही प्लांट बनेगा। वहां पे ये छोटा टी जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये एलिलिक फॉर्म जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। अब सुनिए, अब प्लांट अगर टॉल है, तो उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? कैपिटल टी, और हो सकता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर कि वो डॉर्फ है, तो सर डॉर्फ तो आपने बताया नहीं, तो मैं बता रहा हूं, अगर कि वो डॉर्फ है तो उसके पास स्मॉल टी हो। तो ये जो कैपिटल टी, स्मॉल टी बता रहा हूं, दे आर दी जीनोटाइप, ये जीनोटाइप है, दीज आर दी जीनोटाइप। और जब हम क्रॉस कराएंगे तो इन जीनोटाइप का बहुत इंपॉर्टेंस है। इन जीनोटाइप के बेसिस पे ही हम सारी की सारी क्रॉसेस जो है वो कराते हैं। अभी तो जैसे इस वीडियो में तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो खत्म करेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो है, जो कि हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद वाले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि डाइहाइब्रिड क्रॉस और ब्लड ग्रुपिंग और सेक्स डिटरमिनेशन, ये तीन चीज हम कवर करेंगे। पर यहाँ पर मैं आपको ये एलिलिक फॉर्म जो है वो समझाना चाह रहा हूँ, मेंडल के दो लॉ में समझाना चाह रहा हूँ। एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है, अभी हम देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। पर फिलहाल तो यहाँ पर ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इनमें क्योंकि दोनों एलील सेम है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है ना, ये होमोजाइगस कंडीशन में। और ये क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यहाँ पे दोनों एलील्स हैं वो डिफरेंट हैं, दे आर देयर इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो दे आर देयर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पे दोनों एलिलिक फॉर्म जो है वो सेम है, दे आर, दैट इज व्हाई दे आर द होमोजाइगस कंडीशन। बट हियर द कैपिटल टी स्मॉल टी इज देयर एंड दैट इज देयर इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये अपनी हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो इतना समझ में आना चाहिए। ये होमोजाइगस कंडीशन जो है ये हमें प्योर लाइंस कहते हैं, हमें ये प्योर कंडीशंस है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा एलील जो है वो मौजूद नहीं है, इसमें कैपिटल टी और कैपिटल टी है, स्मॉल टी, इसलिए हम इन्हें प्योर लाइंस भी बोलते हैं। और हमेशा याद रखें कि प्योर लाइंस जो है वो कैसे बनेंगी,
प्योर लाइन जो है वो इन ब्रीडिंग से बनती है। इन ब्रीडिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेज, मतलब प्लांट्स में अगर हम बात करें तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से ही अगर किसी एक प्लांट की स्पीशीज को सेल्फ फर्टिलाइज करवाते जाए तो हमें प्योर लाइन जो है वो मिलती है। अब चलिए मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे वापस आते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, एक प्योर प्लांट लिया, प्योर टॉल प्लांट लिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं। एक प्योर टॉल प्लांट लिया और एक प्योर डॉर्फ प्लांट। अब मैं प्योर बोल रहा हूं मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन में, मतलब कंडीशन क्या है, कैपिटल टी। मतलब इनके पास ये पेयर ऑफ एलील्स है, ये अलग अलग क्रोमोसोम में है, ये पेयर ऑफ एलील्स ये एक ही क्रोमोसोम में नहीं है, ये अलग अलग क्रोमोसोम में है। और क्योंकि जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जब इनसे गैमेट्स बनेंगे तो एक एलील जो है वो एक गैमेट में चले जाएगा और दूसरा एलील जो है वो दूसरे गैमेट में चला जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि इसने टॉल के लिए ये जीनोटाइप लिया और डॉर्फ के लिए ये जीनोटाइप। अब इनसे गैमेट्स तो एक गैमेट, तो ये इससे एक टाइप के सेम टाइप के गैमेट्स बनेंगे, इससे भी सेम टाइप के गैमेट्स बनेंगे और ये दोनों जो है ये क्रॉस होंगे। और जब F1 जनरेशन में देखते हैं, F1 मतलब फिलील वन जनरेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है स्पेलिंग में F1 जनरेशन। तो जब F1 जनरेशन हमें मिलेगी तो F1 जनरेशन में हमें सारे के सारे प्लांट जो है वो टॉल मिलेंगे, क्योंकि हमें ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है और हमें मालूम है कि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है स्मॉल टी पे, मतलब ये सारे के सारे जो है वो टॉल मिलेंगे। तो ये सारे के सारे प्लांट्स का टॉल मिलना, ये सारे के सारे प्लांट्स का यहाँ पर टॉल मिलना क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये जो टॉलनेस है, दिस टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फनेस। दैट मींस यहाँ पर भी ये कैपिटल टी रहेगा, वहां पे स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ये तो F1 जनरेशन के रिजल्ट है। नाउ दीस आर द रिजल्ट ऑफ द F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन के रिजल्ट है। अभी मेंडल ने जब ये दोनों को क्रॉस कराया तो उसको अमेज हुआ, उसको आश्चर्य हुआ कि ये कैरेक्टर जो है ये तो आया ही नहीं, सारे प्लांट जो है वो टॉल हो गए, ये कैरेक्टर उसे दिखा ही नहीं, ये कैरेक्टर उसको आया नहीं। तो उसने क्या किया, उसने फिर F2 जनरेशन मतलब इसके बाद जनरेशन एक हो गई और फिर उसने यहाँ पे करवाई सेल्फिंग, यहाँ पे करवाई हमने सेल्फिंग मतलब यहाँ पे करवाई हमने सेल्फिंग मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मतलब इसी प्लांट से सेल्फ फर्टिलाइज कैसे करवाया आपने, इससे पॉलन ग्रेन्स लिए होंगे और इसी के स्टिग्मा पे उसने स्प्रेड कर दिए होंगे, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन। तो अब जो रिजल्ट मिले उसको थोड़े से अमेज करने वाले, कैसे मिले मैं बताता हूं। तो सेल्फिंग करेंगे, कैमरा साइड में भी यहाँ शायद यहाँ दिखाई देगा आपको, ठीक है। जब उन्होंने सेल्फिंग कराई यहाँ पर, तो सेल्फिंग कराने के लिए उन्होंने क्या किया, एक हेट्रो ये जो F1 जनरेशन का जो प्लांट है वो लिया और फिर से उसको F1 जनरेशन में किया। अभी देखिए यहाँ पे आपको दो तरीके के गैमेट्स दिखाई देंगे। इस प्लांट में दो तरीके के गैमेट्स बनेंगे और इस प्लांट में जो है वो दो तरीके के गैमेट्स बनेंगे। यहाँ पे जो गैमेट्स बन रहे हैं वो कैपिटल टी और स्मॉल टी बन रहे हैं, ये दो तरीके के गैमेट्स हैं और यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दो तरीके के गैमेट्स का फॉर्मेशन है। इनमें क्रॉस होगी, तो जब क्रॉस होगी तो हो सकता है कि ये जो गैमेट है ये इस गैमेट के साथ कंबाइन हो जाए, हो सकता है कि ये गैमेट जो है वो इस गैमेट के साथ कंबाइन हो जाए, हो सकता है कि ये गैमेट जो है इस गैमेट के साथ कंबाइन हो जाए और हो सकता है कि इस गैमेट के साथ ये गैमेट कंबाइन हो जाए। तो जब F2 जनरेशन उसने देखी, जब फिलील 2 जनरेशन उसने देखी तो उसे अलग-अलग कॉम्बिनेशंस मिले। उसने ये देखा कि 1/3 प्लांट मतलब 3/4 प्लांट जो है वो सारे के सारे टॉल है, मतलब 3:1 उनको मिला। कैसे अपन देखें, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल टी आएगा, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। मैं कैपिटल टी को पहले क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि वो डोमिनेंट है और यहाँ पे स्मॉल टी। तो जब हम फिनोटाइप के बारे में बात करते हैं,
जब हमने फिनोटाइप के बारे में बात करी तो यहाँ पे इसको टॉल मिले, यहाँ पे भी इसको टॉल मिले, बिकॉज कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। यहाँ पे भी इसको टॉल प्लॉट मिलेगा और यहाँ पे इसको डॉल्फ प्लॉट। तो जो कैरेक्टर उसने छोड़ दिया, जो कैरेक्टर उसने पहले में छोड़ दिया था वो इसको यहाँ पे, तो इसको 3 टॉल मिलेंगे और एक डॉल्फ मिलेगा। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो, इसका फिनोटाइपिक रेशियो जो है F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो 3:1 है। क्यों? क्योंकि उसको 3 टॉल मिल रहे हैं और उसको एक डॉल्फ मिल रहा है। बट यही अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स देखें, अगर यही हम कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स देखें, एलील्स का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो यहाँ पर उसको कैपिटल टी जो है वो 1 मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो 2 मिल रहे हैं और स्मॉल टी जो है वो 1 मिल रहा है। तो अगर हम बात करें इसका जीनोटाइपिक रेशियो, अगर हम बात करें इसका जीनोटाइपिक रेशियो मतलब कि जीन्स का जीनोटाइप का, ये जीनोटाइप है, जीनोटाइप का क्या रेशियो होगा, तो दैट रेशियो इज 1:2:1, 1:2:1. So that is the important question comes in your exam, the phenotypic ratio and the genotypic ratio. So this is what the Mendel found in his monohybrid cross. ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अगर इसको समझ में नहीं आया तो यू कैन मैसेज मी आल्सो कि ये सर हमें ये समझ में नहीं है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यू कैन कॉल मी आल्सो। So this is the monohybrid cross of the Mendel. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये है, मेंडल ने जो लॉज दिए हैं इनहेरिटेंस के वो हम तीन तरीके से पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये दो ही लॉज है, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें पता आ जाएगा कि जो कैरेक्टर अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा वही डोमिनेंट है। तो इसने देखा कि यहाँ पे टॉलनेस और डॉल्फिनेस है, तो टॉलनेस जो है उसने अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस किया, तो दिस इज द डोमिनेंट ओवर दैट, तो दैट इज द लॉ ऑफ। चलिए ठीक है, तो ये आप एक बार देखिएगा। इसके बाद हम जो है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे और सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में बात करेंगे, और ये चैप्टर जो है वो आपका फिनिश हो जाएगा। तो दो वीडियोस आपको लगेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।